it is indeed a great pleasure for me and for the Indian Institute of Packaging. We are here, we gather here for one-day workshop, come capacity building, training program on packaging for export of food, pharmaceutical products, handloom and handicraft items of Haryana state. I request chief guest of today, Dr. Prabhat Kumar Nemaji. He is in charge Vice Chancellor of NIPTEM. I request Mr. R.K. Chhabra ji, who is President, Rye Industry Association, and already Director, MSME Department Facilitation Center, Karnal, Shri Sanjeev Chawla ji is already there. My apology for late beginning of this workshop. I thank my parental ministry, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, for supporting this workshop under MAI scheme, Market Access Initiative of Government of India under the Ministry of Commerce. I wholeheartedly welcome to chief guest of today, Professor Prabhat Kumar Nemaji. And really, I thank within 24 hours, just hardly before 24 hours, one day evening when I was traveling to the Solan, a similar program I have organized one day before. Last night before I was in Solan, and there was a gathering of 120 participants, and especially from Himachal Pradesh to gather people of more than 100. It was a challenging, and thanks, that program was also we have organized in very short time. Thank you, my honorable in charge Vice Chancellor and Director of NIPTEM, and accepting my invitation and grace to this evening. Thank you very much. I welcome Mr. R.K. Chhabra ji, who is President, Rye Industry Association, and thank you very much for supporting. And again, it is very challenging to organize such a gathering, and in spite of this is the financial year ending. Thank you very much. And of course, and one day after long, I call Mr. Sanjeev Kumar ji, Director MSME, and sir, I welcome you for this evening program, and really thank you very much for your all this man behind of this whole show, and you have done a wonderful job for Indian Institute of Packaging. Really, we thank you, sir. I welcome all the delegates and industry representative of this Sonipat. Really, I came of almost 11 years, because when I joined Indian Institute of Packaging year back in 2011, and I transferred from Mumbai, Chennai to Delhi. The first industrial industry I visited this Sonipat, Kundli. So really, I'm very happy. After long, I'm here and interacting all of people, and I wholeheartedly welcome all of you, because without your support, this program would not be happening possible. And especially I welcome one of the
startup and who is working for this sugarcane startup group. So I welcome you. Please give a big clapping for him. Indeed, for last, please, Betty. So indeed, it is packaging, people understand, and we used to connect this packaging for the elite people. But now it is the time we have to realize packaging will be the one of the important tool, especially our government's mission to double the farmers' income. So then definitely packaging will help to market their product to the ultimate consumer in sound and fresh condition. We have to teach them to what right type of the packaging is important for them. So therefore, I've invited to interact. They will understand how the packaging industry is growing. At the outset, I hope all you are aware, and some of the new face of new industry entrepreneur I can see here. The Indian Institute of Packaging is an autonomous institute under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. This institute was established years back in 1966. So you can say like this institute is 56 years old institute in the country. This institute is the pioneer in the field of the packaging. Then initially this institute was established with the objective to give the testing and certification facility for the packaging manufacturer and user industry. With the objective of to promote the export business of the country, this institute was established. With the time, we have 6 centers. Recently, we have new 2 centers. One is in Ahmedabad. We have established new center, Visakhapatnam, and next month, and we are going to start a new center in Bangalore center. This shows that how the packaging importance, this institute is getting more and more presence all over the country. Every month we are getting different states request, why not we have a center in Kashmir, we have a center in Sikkim, we have a center in then ultimately, all your business, and this institute is working on self-sustaining mode. This institute is unique institute in the country. So that we have to evaluate the sustainability of the institute. It doesn't mean we are not, this institute is, why it is a unique institute, this is not the testing and certification institute only. This institute is also involved in teaching and research. This institute is also involved in a very fascinating mode of promoting our industry. So this all A to Z solution we provide to the packaging industry. This institute is not only education institute, this institute is not only testing and certification institute. We are also playing a pivotal role, an important role for the national standard and specification. We are also very much involved the packaging related policy making for the country. So we can say, and we feel proud. We are associated, and you are also directly and indirectly associated with the Indian Institute of Packaging. Then why it is important? Because the packaging, when we talk about the packaging is now not only earlier we used to say the packaging is the silent salesman, but the packaging is now an aggressive tool of marketing. It is an important tool for marketing now these days. Packaging, as far as the functionality of the packaging is important to pack any commodity for domestic business as well as the export business, we require also aesthetically design. So both the functional design of the packaging is important as well as aesthetically design of the packaging is important. Therefore we have invited the people from the printing industry also. Printing, when we talk about the packaging, printing is an integral part of the packaging. We cannot complete our packaging and packaging system without the printing and labeling.
We should have attractive design, graphics, legible design, and of course, when we talk about the legality of the packaging, so then legal compliances is important. That is the labeling compliances is important. We have to understand. Then domestic market, we know that we have a different requirement to transport of a product from one place to the another place. Then we need to have to understand the different logistic systems. We have different climatic conditions. Accordingly, we have to design packaging and packaging. The tailor-made packaging we have to understand the requirement of the product. Accordingly, the requirement of transportation mode. So therefore, we are talking about the multimodal transportation system. And recently, the Indian Institute of Packaging is also contributed significantly of the Government of India's initiative of logistic initiative, and where the packaging is now packaging initiative for the logistic department of Ministry of Commerce, where it was realized that when we talk about the logistic cost, the 14% cost is involved for the logistic. And when we talk about that, the packaging is an integral part of whole supply system of supply chain management system along with the logistic systems. If we enable to reduce the cost of 1% of the logistic packaging, that is our cost. How much the cost of whole logistic we can minimize it. That is there. How we have to optimization. So therefore we are here, and Indian Institute of Packaging always give the services to the industry, how we have a best optimized packaging systems in a cost-effective manner. So always that is another important department of Indian Institute of Packaging is that we have a department of consultancy and advisory services. So far, for since inception of the institute, we have given more than 1,000 industry consulting services to the industry. It is not a small thing we can say like. And another thing is that Indian Institute of Packaging is the sole institute in the country where we are authorized by the issuing dangerous good bulk packaging certifications. Whether if you are going to export your product by the sea mode or air mode, you require mandatory certification for export for the bulk packaging for the dangerous good that is issued by Indian Institute of Packaging. That is trackable and traceable worldwide. The system now we have fully digitalized our export packaging certification, and you are happy to. I will happy to say that earlier when we used to apply a certificate from Indian Institute of Packaging, you waited almost 1 month. All you agree? You believe that years before when I have visited 2013 your Kundli industry, the industry people, they used to say you are taking too much time. Now I feel proud and content to say being heading at the Indian Institute of Packaging, I reduced the timeline to get the UN certification from 1 month, 28 days. Now we are issuing certification within 7 days. I hope one of the industry, anyone is there? They are getting regular certification for Indian Institute. This is the achievement. This is the outcome of implementation of digital certification at Indian Institute of Packaging. Today, when I was traveling from my office to this place, I got few calls. New exporter has called me and all. I told now it is fully digital our institute. You can only apply and send your certificate to the Indian Institute of Packaging, and you will get a certificate within 7 working days. This is the and we issue more than 15,000 certificates, or more than 80% of the certificates we issue for the sea mode shipping line by the sea mode, and rest 20% we issue for the air. And another part, during this lockdown, due to the, I feel I had interacted lot time to the industry people, we have implementation is that earlier your validity of the UN certification was 1 year,
then you have again after 1 year you used to apply, you get certification, extension certification for the 6 months. 2 times for one certification you used to apply. But when I became a director during the lockdown with several deliberation interaction with the all experts and stakeholder, I already eliminated one step. Now you can apply Indian Institute of Packaging for UN certification, directly you will get the validation of 1.5 years. This is the, what I can say, this is the great achievement, and now you cannot apply after 6 months. I hope now you are very happy what we have done for last 1 year. Is it? Any industry? Earlier you used to apply what 1 year, and then after extension you used to apply for 6 months, you get a validity. So now directly one certificate you have a validity for 1.5 years directly. So again we are also working very closely and with the interaction with the industries that how best possibility in different packages material based validity we can give. Even we are also very open with the time if we can give the certification of validity for 3 years where we can apply. We have some limitations. Indian conditions are different from the foreign countries. So we have to, based on the scientific data, based on the shelf life, compatibility, we again very open. We are doing our in-house research. We are also doing data analysis to how we can best way examine the shelf life of any particular packaging material and increase or enhance if possible at par with the international practices. That I can also assure you in coming days you can may have a UN certification of validity up to the 3 years or 2 years, whatever the possible based on the scientific inputs. So these are the few highlights. I thought during my welcome address I will share, and rest of the things I hope my technical team will interact to you, and basically their talk will be more on interaction mode rather than the PPT modes. So that how you are interactive, how will interact will be the be interactive to you. With this verse, once again, I wholeheartedly will welcome to you all the stakeholders, and thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. गुड आफ्टरनून। मैं आज की इस वर्कशॉप में प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात के नीमा जी, डायरेक्टर निफ्टिम, इनका स्वागत करता हूं। आर के छाबड़ा जी, प्रेसिडेंट राई इंडस्ट्री एसोसिएशन, का स्वागत है। प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर आलम, आईआईपी दिल्ली, का स्वागत है। इसके साथ पवन कंसल जी, एक अग्रणी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे कुंडली क्षेत्र के, उनका स्वागत है। हमारे पूर्व निदेशक मेजर सिंह जी आए हुए हैं, इनका भी स्वागत है। और सभी राई इंडस्ट्री एसोसिएशन और कुंडली के जो एंटरप्रेन्योर हैं, सबका भरपूर स्वागत। बारिश के इस मौसम में आप यहाँ आए हैं। आज की वर्कशॉप के टॉपिक को लेकर के मैं भी बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पैकेजिंग जो है हमारे प्रोडक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। पैकेजिंग ना केवल सिर्फ एक चीज़ को रैप करने के काम आती है, पैकिंग की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी, फंक्शनल चीज़ें भी बहुत पूरी करता है। अगर मैं रियल जूस की बात करूं तो उसकी जो पैकेजिंग है सिर्फ पैकेजिंग नहीं है, वो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है, उसमें कंटामिनेशन को रोकती है। अगर हम शिप से कोई सामान भेज रहे हैं बाहर, तो 2-2.5 महीने के बाद, पता नहीं कितने दिन के बाद पहुंचता है। रास्ते में उस सामान के लिए ट्रक से जाएगा, फिर अनलोडिंग होगी, फिर उसके बाद शिप में लोडिंग होगी, फिर उसके बाद वहाँ अनलोडिंग होगी, उसके बाद उसके वेयर हाउस में पहुँचेगा कंसाइनिंग के। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। सो वी हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन वेरियस एस्पेक्ट्स, कि हमारी जो पैकेजिंग हो वो वेदर के हिसाब से हो, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो, प्लस पैकेजिंग कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन।
इनको टर्म्स के हिसाब से उसके ऊपर इंफॉर्मेशन रहती है कि वो प्रोडक्ट क्या है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसमें क्या सामान है, कितनी क्वांटिटी है, उसका टेयर वेट क्या है, नेट वेट क्या है। मीन्स देर आर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी बार कोड होगा जिससे हमारे को प्रोडक्ट कब बना था, कब उसकी एक्सपायरी है। सो देर आर सो मैनी थिंग्स विच दिस पैकेजिंग कैरी। तो पैकेजिंग को एक छोटा टॉपिक ना समझ करके, पैकिंग आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बाकी के एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि तनवर आलम जी ने कहा हमें कि एस्थेटिक होनी चाहिए। हम लोग कई बार ये दूर से ही देख के बता देते हैं कि ये मशीन जो है ना, ये इंडिया की बनी हुई नहीं है। कैसे पता लगता है? उसके कॉन्टूर स्मूथ होते हैं। भगवान ने भी आदमी को बनाया, उसके सारे कंटूर स्मूथ हैं, कहीं कोना नहीं है ऐसा चुभने वाला। तो इसी तरह से जो बाहर की मशीनें हैं वो काफ़ी एर्गोनॉमिकली भी अच्छी होती हैं। एर्गोनॉमिकली अच्छी मतलब ह्यूमन और मशीन का इंटरफेस बहुत अच्छा होता है। उनके हैंडल्स काफ़ी स्मूथ होते हैं, अप्रोचेबल होते हैं, उसकी जो कंटूर्स होते हैं बड़े स्मूथ होते हैं। इस तरह हमारी पैकेजिंग भी सुंदर होनी चाहिए। कलर्स ऐसे हों कि वो आंखों को सूथिंग हो, डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर। अब अगर हम केरल में कुछ सामान भेज रहे हैं तो डार्क कलर्स चल जाएंगे, वहाँ पर काफ़ी लोग डार्क कलर पसंद करते हैं। घरों में पेंटिंग भी डार्क कलर की होती है। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में बात करेंगे तो आपको जो सूफियाना रंग हैं, जो लाइट कलर्स हैं, जो एलाइट कलर्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो हम लोग जो पैकेजिंग को डिज़ाइन करते हैं, नॉट ओनली हम लोग लीगल रिक्वायरमेंट का ध्यान रखें, हम लोग उसमें एस्थेटिक सेंस को भी डालें। और पैकेजिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर कॉस्ट कटिंग आल्सो। अगर मैं टॉय सेक्टर की बात करूं तो टॉय सेक्टर में 35 से 40% पैसा जो है वो पैकेजिंग में चला जाता है। तो अगर हम पैकेजिंग को प्रॉपरली कर लेते हैं, प्रॉपर मटेरियल है उसका, और उसके पूरी कोटिंग वगैरह जो हैं वो एस्थेटिकली की हुई हैं, और प्रोटेक्टिव कोटिंग्स हैं, और कॉस्टिंग भी हम उससे कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपने सारे प्रोसेस में 1-2% भी कॉस्ट को कंट्रोल कर लें पैकेजिंग, प्रॉपर पैकेजिंग से, पैकेजिंग को रीयूज़ भी किया जा सकता है। तो हमारी पैकेजिंग ऐसे भी डिज़ाइन हो सकती है। कुछ आइटम्स हैं जैसे कटलरी की आप आइटम्स बनाते हैं, अगर हम पैकेजिंग ऐसी बना दें कि एक बार हमने उसमें से सामान निकाल लिया और पैकेजिंग को बाद में भी यूज़ कर लिया, तो वो हमारी रीब्रांडिंग के भी काम आ सकती है, उसकी यूटिलिटी भी बढ़ सकती है। सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन पैकेजिंग, लेकिन मेरे जो दिमाग में ख्याल आए वो मैंने शेयर किए हैं। हमारा जो ऑफिस है वो करनाल में है, मैं MSME DFO के नाम से जाने जाते हैं, और हमारा काम है MSME को सपोर्ट करना। तो हम लोग IIP के साथ अपनी कंटिन्यू रिलेशनशिप रख सकते हैं, ना केवल कि ये लोग टेस्टिंग और सर्टिफिकेट देते हैं, प्लस यहाँ पर बच्चों की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। तो यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं, यहाँ के जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको भी हम लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो हमारी पैकेजिंग में कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो ये राई इंडस्ट्री एसोसिएशन में शायद ये पहला प्रोग्राम होगा यहाँ कुंडली में। तो अगर इस तरह के हम लोग आगे भी फ्यूचर में भी प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसमें डॉक्टर साहब, हमारे कंसल साहब का एक आइडिया था कि हम लोग यहाँ की इंडस्ट्री को आपके यहाँ भेजें, ताकि वो वहाँ की टेस्टिंग की लैब देख सकें कि बस्टिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, पेपर गलता कितनी देर में है, उसमें क्या क्या केमिकल टेस्ट उसके होते हैं, मैकेनिकल टेस्ट क्या होते हैं, वेदरिंग के क्या टेस्ट होते हैं। तो वो सब भी हम अगर देखें तो हम लोग अपने यहाँ पर पैकेजिंग को बड़े बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद IIP नए पैकेजिंग मटेरियल्स की भी बात करता होगा, क्योंकि आज की डेट में अल्टरनेट पैकेजिंग मटेरियल की भी हमें चर्चा करनी चाहिए। और हाँ, हालांकि हमें रेगुलेशंस तो देखने ही पड़ेंगे कि हम किस कंट्री में अपने प्रोडक्ट को भेज रहे हैं, तो पैकेजिंग उसके हिसाब से तो होनी चाहिए, बट अल्टरनेट क्या मटेरियल्स हो सकते हैं, हमें उसकी भी चर्चा करनी चाहिए, ताकि हमारी पैकेजिंग सुंदर हो, मजबूत हो और सस्ती भी हो। थैंक यू वेरी मच। गिविंग योर ओपनिंग रिमार्क्स के पैकेजिंग सुंदर हो, टिकाऊ हो, अच्छा हो, और नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द पैकेजिंग मटेरियल फॉर अल्टरनेटिव। मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि वी टुक somehow some challenges to develop packaging material from alternative source. Recent time I will show in my presentation we have developed some of the alternative packaging material, especially
to utilize the agro waste material, and we got a patent for that also. And when we talk about the alternative, so definitely now we are also working to develop alternative packaging material from the bamboo mission of the Government of India. So Mr. Rahul Tripude, who is Deputy Director, and he is working on this particular project. And then, of course, I will discuss in my talk and my presentation that so far we have developed 140 packaging design specification for last 3 years, especially for handloom and handicraft product. So that's one of the topic we want to discuss here. And this area, Kundli and Sonipat and up to the Panipat is also the industries are the clusters are now working on handloom and handicraft product, and basically handloom items. So we have developed a lot of packaging, innovative packaging design and specification in this particular segment also. When we talk about the regulation part, so definitely being head of the Indian Institute of Packaging, I'm heading 3 packaging committee, scientific packaging committee, chairman of BIS, where we are making the standards of the paper packaging, plastic packaging, glass packaging, metal packaging, and of course for last 4 years I'm the member secretary, we can say, for the food packaging safety of FSSAI of food packaging scientific committee. So where we are also very much giving our inputs, contribution and scientific data, how our packaging should be safe in terms of the safety when we talk about that. So I thought I should enlighten in this way how the Indian Institute of the Packaging is working in all directions. And the one thing I could not mention about that, recent times, what we have done during the pandemic situation, and 3 important courses we have started in the country, and that these courses are what we can say a milestone in the history of India. We have started online course for certified engineer course. Because this packaging is, when we talk about this is in applied science, when we talk about the packaging is the combination of science, art and technology. So therefore any engineer can join a packaging course. So our postgraduate diploma course eligibility criteria is any engineer or science graduate, they can join a postgraduate diploma course. But with the time, this course is although very popular, very accepted, demanding course in the country of postgraduate diploma in packaging. We are running for last 36 years. Now for last 2 years, 2 unique course of academic affiliations we have started. First time in the history of India, we have started MS course in packaging technology. Such type of the course is not available in the country. And another course, IIP Delhi Center has started MSc course in packaging technology. And this year already we have applied for affiliation of Guru Gobind Singh Indraprasth University to start integrated course of 5 years BSc and PG course. I hope I need your wishes. Next academic years we have also a bachelor course of integrated modes. That is also our plan, sir. So that what we can say to fulfill the requirement, we have done some study. More than 35,000 packaging professionals are required for the packaging and allied industry. And we required the resources, human manpower who can work on floor. So we have a course of undergraduate course. We required a managerial position post. We required a person of R&D. So keep in mind, we have designed different courses of academic affiliation. We have started MSc and MS course so that we can fulfill the demand of the human resources for the country for research. We are going to start undergraduate course so that we need to have who can run the plant packaging industry.
So that was the well demand course for the country. And of course, we know that this packaging industry is mostly in the hand of family business. So to enhance their skill, we have some certificate course also. We have distance course also. We have online course also. So this what I thought I should share before you. Okay, what we are doing in the field of training and education. And I would like to mention about this pandemic year was very challenging for each and every, including the packaging industry. And during the pandemic, we reached out under the Atmanirbhar Bharat Azadi Ka Amrit Mahotsav, 28 states, sir. We covered all 28 states, and now we are going to complete all 36 states. At least one now, happy to share, all the states are having a nodal officer with the Indian Institute of the Packaging. So now packaging is getting more in importance in both the administration level as well as research. And the third important thing is that we are also in the process of world-class laboratory. We got the funding of more than 106 crore to establish world-class packaging laboratory in the country, because we have to have a best facility for the country at par with any international laboratory. So that I can say how we are working, and all our laboratories are annual accredited lab. Another important here, you have mentioned the single-use plastic solution. The single-use plastic alternative, there is people are lot talking about that biodegradable sustainability, sustainable packaging. So then who can certify? Only one organization cannot certify. So we have also developed a facility to evaluate, to give the testing facility to the packaging industry for biodegradable testing facility. That facility we have created at par with the any other laboratories, enable accredited laboratories. That I thought, this is the things I thought I have to share. Now time is there. We have to listen our chief guest, and I request Dr. P.K. Nemaji to address this gathering. Please, Dr. P.K. Nemaji. Okay, good evening everybody. मंच पे आसीन हमारे स्पेशल एस्टीम्ड गेस्ट श्री संजीव जी, डायरेक्टर एमएसएमई करनाल, श्री चावड़ा जी, प्रेसिडेंट राई इंडस्ट्रियल एरिया, तनवीर जी फ्रॉम IIP Delhi, and all the guests, entrepreneurs, industrialists from Rai and Kundli. I welcome you all to this gathering. Myself is Dr. P.K. Nema. I am looking after the charge of director at NIFTIM. NIFTIM, as you might be knowing, particularly the Kundli people, that is it is an institution related to food processing, which is situated in inside the industrial area in Kundli. And many of our friends who are in Rai and dealing with the food processing, they are aware that there is such institution which has been set up by the Ministry of Food Processing Industries, Government of India. So today it's a very special occasion that an institution which are dealing with packaging material have come to the doorstep of the industry. So this is a very good sign, good sign in the sense that as we are seeing that the Indian economy is increasing, so there is a need to increase the academia and industry linkages, networking, and we both have to come together, and then I think we can ensure the growth of the country. So IIP, as they are here today to discuss about the various aspects of packaging material, and particularly for food, pharma, handicraft, handloom items. So being from the Food Institute, I can stress more on the food, because the requirement of packaging for food, pharma, handicraft, handloom items are slightly different. Of course, all packaging materials are meant for protecting the product inside it, okay? But food has a special demand. Food not only needs the physical protection or ease of handling,
but it also needs to make sure that, because food is a biological material, it is changing with time, it is getting affected by the environment. So whether the packaging material can save the quality of the product when it was packed, and the same quality is there when it is used by the customers. So quality retention is very important. Like in pharmaceutical, I would say more than quality, the safety is important. If any product is contained in a packaging material, it must remain safe and serve the purpose for which it is taken. So that is the point of packaging for pharmaceutical material. इतना ज़्यादा पावरफुल और मोटिवेटिंग था कि मुझे लगा कि मतलब ही इज़ द मैन जो बात समझते हैं और एक्शन की बात करते हैं। 10-10 फार्मर्स के ग्रुप इकट्ठे किए हरियाणा में, महाराष्ट्र में, और उनको मोटिवेट किया कि उनको पैकेजिंग समझनी चाहिए। तो कंट्रीब्यूट करके उस वक्त हमारे पास 40 फार्मर्स थे महाराष्ट्र में। 40 फार्मर्स ने 2-2 हज़ार रुपये कंट्रीब्यूट किए और एक फार्मर को हरियाणा महाराष्ट्र से जो 1.5 साल का कोर्स है पैकेजिंग का, उसके अंदर जो ऑफलाइन कोर्स है रिमोट वाला, उसमें एडमिशन दिलाई। और हर हफ्ते वो जो कोर्स की किताबें आई हैं गूगल मीट पे, पूरे भारत के फार्मर जो भी जहाँ से जुड़े हैं मिलके हर संडे को उस किताब को पढ़ते थे। ऐसा हमने सब में अवेयरनेस क्रिएट किया। उसके बाद सेकंड हमें जो मौका मिला कि एक बार इन्वेस्टमेंट हुई है, थोड़ा रुकना पड़ता है, पैसे फार्मर्स में नहीं होते। फिर हमने एक और फार्मर को चुना महाराष्ट्र से, उनको 3 महीने के लिए हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए IIP मुंबई में भेजा। फिर से सब ने पैसा इकट्ठा किया। अब की फार्मर्स ज़्यादा थे, फीस भी थी, रेजिडेंशियल प्रोग्राम था, 3 महीने घर से बाहर रहने की हिम्मत भी थी उनकी। और वहाँ जाके लोगों को लगा कि फार्मर क्या पढ़ेगा, ऐसा महसूस होता है हमें कि फार्मर क्या करेगा। बट ही डिड एक्सीलेंट जॉब। और आज कल उन्होंने शोलापुर में पूरा इवेंट करवाया है IIP के साथ मिलकर। और दूसरी चीज़ हमने क्या समझी उसी प्रोग्राम के दौरान कि जो फूड की सेफ्टी है, तो उससे उत्साहित होकर जितने भी फार्मर्स हैं हमारे, सब ने सुपरवाइज़र बेसिक लेवल 1 का फूड सेफ्टी का प्रोग्राम किया ऑनलाइन। सभी ने 5-5 प्रोग्राम किए, राइट फ्रॉम आपका जो स्ट्रीट फूड से लेके, पैकेजिंग से लेके और सर्विंग तक, जितने भी बेसिक प्रोग्राम है सारे के सारे किए। और अभी रिसेंटली इनमें से कुछ लोगों ने इंटरनल ऑडिटर का फूड सेफ्टी का कोर्स किया है, FSSC 2000 का। ये सारी बातें किसी फार्मर के मुँह से सुनना बहुत अजीब लगता है, लेकिन आज ये सब लोग बहुत अवेयर हैं। और क्योंकि ये आने वाले टाइम के फूड के नवाचार का भविष्य है हमारी नज़र में, तो ये जब तक लॉ नहीं समझेंगे, हमें ये खुशी है कि इन्होंने मिलकर ये सब कंट्रीब्यूट किया। और सेटअप कैसा होना चाहिए, मशीनरी कैसी होनी चाहिए। बाज़ार की मशीनरी देखी तो इनको लगा ये मशीनरी फूड सेफ नहीं है। इन्होंने अपने लिए खुद से अपनी मशीनरी डेवलप की है, गन्ना छीलने की मशीन, गन्ना जूस निकालने की मशीन, ये खुद बना रहे हैं। हमारे फार्मर हैं यहाँ पे जोगेश जी सोनीपत से, इन्होंने अपने आप अपनी मशीन डेवलप की है गन्ना छीलने की, उसका ब्रश कस्टमाइज करवाया है। दिस इज़ द पावर ऑफ इनोवेशन इन द माइंड ऑफ फार्मर। ठीक है, स्टील रोलर की मशीन बाजार में मिलती है, 5 रुपये की मशीन से 10% जूस ज़्यादा निकलता है। ये थॉट फार्मर को आ सकती है क्योंकि उसका जूस है। तो 5 रोलर की मशीन पे सर काम कर रहे हैं। इन सब ने मिलके, और भी बहुत सारी मशीनें बनाई, बात लंबी हो जाएगी। तो ये सारा मुझे आज मौका मिला है सर का धन्यवाद करने का, क्योंकि इनकी वजह से जो एम्पावरमेंट आई है पैकेजिंग के प्रति, और सेंसिटिविटी, खाली पैकेजिंग नहीं, फूड के लिए जो सेंसिटिविटी आई है, बात हम एक करते हैं, 360 डिग्री तक की रोशनी होती है उसमें, उसी से फूड सेफ्टी आती है, उसी से आपकी सेल्स की बात आती है कि अगर पैकेजिंग अच्छी है तो पैकेजिंग आपका सेल्समैन है, तो फिर जो बना रहा है वो क्यों नहीं अच्छा होना चाहिए। तो इन्होंने एक स्लोगन भी बनाया अपने लिए कि हम उगाते हैं अच्छा, हम बनाते हैं अच्छा, हम खिलाते हैं अच्छा, हम कमाते हैं अच्छा, हम फूड बिजनेस के आने वाले नवाचार का भविष्य है, हमारा स्वागत कीजिएगा। ये अपना बोर्ड लगा के रखते हैं हर जगह पे, ये लिख के कि हम कमाते हैं। तो ये सारी यात्रा में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी का जो नाम है फार्मर्स सेलिब्रेटिंग फार्मर्स एज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम भी बहुत सारी चर्चा से रखा गया था। सेलिब्रेटिंग फार्मर्स एज मतलब हर उत्सव में किसान का पहला हाथ। वो कैसे होगा कि अगर हमारी कंपनी से कोई, हमारे स्टार्टअप से कोई किसान मिलता है आके, तो ही शुड सेलिब्रेट कि ये हमारे लिए हो रहा है और हम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये लोग खुश होंगे उससे। वो सेलिब्रेटिंग मोड में जब अपने खेत में जाएगा तो उसकी धरती, उसका पानी, उसकी मिट्टी, उसके जीव जंतु, उनका वो साथी है, उसको खुश देख के वो भी खुश होंगे। तो जो फसलें होंगी वो सेलिब्रेशन वाली फसलें होंगी।
वो फसलें और उनसे बने हुए प्रोडक्ट जो किसान का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा वैल्यू चेन में, वो फसलें जब आपके घर तक पहुँचेंगी, जो डिलीवरी पर्सन उसमें सेलिब्रेशन की वाइब्रेशन है, तो सारे रास्ते सेलिब्रेशन करती आएंगी और आपकी बॉडी में जब वो प्रवेश करेगी तो क्योंकि वो उसकी हर चीज़ में सेलिब्रेशन है, तो आपकी बॉडी सेलिब्रेट करेगी। और सबसे बड़ी सेलिब्रेशन है हेल्थ, उसके बिना कोई सेलिब्रेशन नहीं है। अगर आप हेल्दी नहीं है तो कोई सेलिब्रेशन ही नहीं है। दिस इज द टोटल मीनिंग ऑफ दिस नेम ऑफ अवर कंपनी। हमारा जो पर्पस है वो है अच्छे भोजन को गाड़ी वाले को और गाड़ी के ड्राइवर को दोनों को सही मूल्य पे पहुंचाने के लिए कार्य करना, ये ध्यान में रखते हुए कि किसान और उनकी आने वाली सभी पीढ़ियां इतने प्रॉफिट में हों कि वो खेती से प्यार करें, खेती छोड़ के ना जाए। ये रीज़न, ये इसको अचीव करने के लिए 5 डायमेंशन चुनाए हैं टू ट्रांसफॉर्म फार्मर्स इनटू फार्मरप्रेन्योर्स, सोल बेस्ड फार्मरप्रेन्योर्स, धरती से जुड़े हुए फार्मरप्रेन्योर्स। ये फार्मरप्रेन्योर को इनेबल करने के लिए 4 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर तो गिव देम इनोवेटिव फ्रूट्स जो मार्केट डायनामिक्स चेंज कर दें। गन्ने को हमने पहला चुना है, तो गन्ने की चटनी, गन्ने की आइसक्रीम, गन्ने की कैंडी, गन्ने की हर्बल चाय भी पिलाएंगे आपको हम, और बहुत सारे प्रोडक्ट। जो 20% लैंड से आप 80% इनकम करेंगे, 80-20 रूल लगाया, साइंस लगाई है इसमें। दूसरा पैरामीटर है इनोवेटिव मशीनरी इन देयर हैंड्स। तो हमने राइट फ्रॉम पीलिंग अप टू फ्रीजिंग, IIT मुंबई से हमने IIT मुंबई से टाइप किया, IIP से टाइप किया, सारी मशीनरी हमारी डेवलप हो चुकी है। हो सकता है अगले साल तक हम उसकी पोजीशन तक आ जाए। और मशीनरी कहाँ बनेगी? किसानों के पास। मैन्युफैक्चरिंग विल बी डन बाय फार्मर्स, पार्ट्स विल बी सप्लाइड बाय द इंडस्ट्रीज। तीसरा पैरामीटर क्या है? कलेक्टिव वर्किंग, किसानों के समूह बनाना, किसानों और स्टार्टअप को जोड़ना। जैसे हमारे एक स्टार्टअप है पूनम जी, ये इनके साथ जुड़ी है, इनका ये ट्रेनिंग देती है इनको। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हमने इनके साथ क्लब किए हैं जो अपनी बुद्धि को अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से इनको इनेबल करते हैं, दोनों दोस्त हो गए आपस में। तीसरा है किसानों और इंडस्ट्री को इंटरफेस करना। आज हम पैकेजिंग इंडस्ट्री से भी उम्मीद करते हैं जुड़ेंगी, तो डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। ऐसे रॉकवेल इंडस्ट्री नामक एक रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री है जिन्होंने हमारे लिए एक फूड सेफ चुस्की मेकर बनाया है, फ्रॉम हार्ट, दिल से जुड़ के साथ में। चौथा पैरामीटर है इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज। 80-20 रूल, मतलब 20% एफर्ट से 80% इनकम कैसे करनी है, ये हमारा निश है। दूसरा किसान किचन नेटवर्क का स्थापना करना। आने वाले वर्षों हम चाहेंगे कि हमारी किसान किचन नेटवर्क, जैसे क्लाउड किचन होती है, किसान किचन नेटवर्क के क्या पैरामीटर हैं? बना हुआ खाना, सेमी प्रोसेस फूड, कच्चा खाना, मतलब बनी हुई दाल रोटी और कटी हुई सब्जियां, या फिर बेसिक मटेरियल, तीनों आपको एक ही जगह से मिलेंगी। आपको कुछ भी चाहिए वो खेतों से आएगा, केमिकल फ्री। ये हमारा सपना है कैसा हो। उसमें किचन इक्विपमेंट भी है, उसमें डिलीवरी भी है, उसमें पैकेजिंग भी है। जब सब मिलेंगे तो हम अपने भोजन पे कंट्रोल कर पाएंगे। इस व्यवस्था के माध्यम से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत सारा समय आपका लिया, हम सर मैं एक चीज पूछना चाहेंगे, जो मशीनें ले रहे हैं उस पर कुछ सब्सिडी मिल रही है? सर ये मशीनें बना रहे हैं, जो बना, अगर जो खरीदना चाहें तो 35% सब्सिडी वाली एक स्कीम चल रही है, बहुत उसमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर है उसकी तरफ से। मैं कहना चाहूँगा इसके ऊपर। हाँ, वो बाद में हम हाँ जी, हमने बैंक जाने को इनिशियल स्टेज में मना किया है। अगले साल हम वो स्कीम लेने वाले हैं। बैंक जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पैसा आएगा तो करना क्या है। अगर बिना इन्फॉर्मेशन के पैसा आएगा तो खर्च करने का नुकसान हो जाएगा। इनमें से किसी के ऊपर कोई लोन नहीं है, किसी ने कहीं से कोई पैसा उधार नहीं लिया। हमारे महाराष्ट्र के फार्मर्स ने एक डीप फ्रीजर 10 लोगों ने मिलकर लिया था, जिनके 5 डीप फ्रीजर है, 3 मशीनें, सब खुद से कमा के खुद से लगाई है। मंच पे विराजमान हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर प्रोफेसर, हमारे डायरेक्टर नीमा जी, निफ्टम के डायरेक्टर हैं, श्री संजीव चावला जी जो हमारे डायरेक्टर MSME DFO करनाल से हैं, जिनके सौजन्य से ये प्रोग्राम आज हम कर पा रहे हैं। सर का इनिशिएटिव था, उन्होंने कहा कि ऐसे से हमने एक बहुत अर्जेंट प्रोग्राम करना है। हमने इससे पहले कुछ दिन पहले IIT में एक प्रोग्राम अरेंज किया था, हाउ MSMEs कैन एंटर एक्सपोर्ट्स। उसमें एक्सपोर्ट पैकेजिंग का एक सेक्शन था, वो तब रह गया था किसी वजह से, अनअवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर जो भी कहे हम। तो उसी सिलसिले में चावला जी ने कहा कि अब ये हम इसको इमीडिएटली कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी इमीडिएटली इसकी प्रिपरेशन की और ये प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें कि आप जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आज हम किस किस चीज़ों पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और
डॉक्टर आलम हमारे बीच में बैठे ही हैं, सारा मंच संचालन कर रहे हैं, तो इन्हीं के सौजन्य से ये सारा आज का प्रोग्राम हो रहा है। आप सब लोग भी यहाँ आए हैं। हमारे बीच में श्री मेजर सिंह जी जो रिटायर्ड डायरेक्टर MSME DI हैं, वो भी हमारे बीच हैं। मिस्टर कंसल साहब चले गए, चलिए वो भी आए थे। और आप सब लोग आज के VIP आप सब लोग हैं। हम लोगों ने तो बोलना है, पर जितनी चीज़ों को ग्रहण करना है वो आप लोगों ने करना है। आप सब ने चीज़ों को सीखना है अच्छे से, ताकि आने वाले समय में इन सब चीज़ों का हमें फ़ायदा हो पाए। अभी जैसे निफ्टम के बारे में आप लोगों में से कम लोग जानते होंगे, या हो सकता है ज़्यादा भी जानते हो। एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है हमारी, और हमारे बिल्कुल पास में कुंडली में है। और सर ने इन्वाइट भी किया है कि आप हमारे यहाँ आएँ। बच्चों को हम हायर भी कर सकते हैं यहाँ से। जो फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड यूनिट्स हैं, इवन जो फूड रिलेटेड पैकेजिंग यूनिट्स हैं, वो सारे यहाँ से बच्चों को हायर भी कर सकते हैं। हम निफ्टम को विजिट भी कर सकते हैं, वहाँ की लैब्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ जो मिशनरीज हैं, अगर आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते हो कि हमने कुछ फूड प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है, तो ये पूरी हेल्प करने के लिए हमारी तैयार हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से जाके अपना पूरा का पूरा प्रोडक्ट बना के, सिर्फ ब्रांडिंग उनकी होती है, सारा सामान यही बनाते हैं और यहाँ से बाहर पूरी इंडियन मार्केट में बेचते हैं। और फिर जब उनकी मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है तो फिर अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं। तो ये सब मॉडल्स भी आजकल बहुत अच्छे पॉपुलर हो रहे हैं। अपना ब्रांड डेवलप कीजिए, प्रोडक्ट बनाइए और मार्केट में सेल कीजिए। तो इन सब चीज़ों के साथ, और पैकिंग की बात तो हम लगातार आज पूरे सेशंस में करते ही रहेंगे। इस पैकेजिंग के साथ कंप्यूटर्स का भी बड़ा रोल है, डिजाइनिंग का भी बड़ा रोल है। अभी आप जितने पैकेजिंग बनाने वाले हैं या आप पैकेजिंग यूज करने वाले हैं, आपको ये भी पता है कितना सारा यूज हमारा डिजाइनिंग करने में है, क्योंकि जितना सुंदर डिजाइन होता है तभी पैकेजिंग भी सुंदर दिखती है। इसके साथ साथ प्रोडक्शन लाइन्स हैं हमारी। थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि पैकेजिंग तो आप करते रहेंगे, साथ साथ थोड़ी सी बात बीच में इंडस्ट्री से रिलेटेड करूंगा कि जैसे आप पर आवर प्रोडक्शन पे ध्यान दें। आप जितने पैकेजिंग इंडस्ट्री वाले हैं या दूसरे भी हैं, तो मेरी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इन मॉड्यूल्स को, 2-3 मॉड्यूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इन पे वर्किंग करें और इनको प्रैक्टिकल शेप दें अपनी इंडस्ट्री में, ताकि हम इससे वेस्टेजेस को बचा सकें, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर पाएँ और साथ में अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट रिलेटेड जो हमारी एक रेगुलर सीरीज चल रही है उसका पार्ट है। हम इसके बारे में डिटेल में भी चर्चा करेंगे अगले महीने, जब चावला जी हमारे लिए कॉस्ट एफिशिएंसी, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस और लीन मैनेजमेंट हमारी डिस्कशन हो चुकी है। अगले महीने का जो हमारा प्रोग्राम होगा, क्योंकि आपको पता है आप हर महीने एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ जो राई में एक प्रोग्राम हमारा होना है, उसकी रूपरेखा हमने अभी से तय कर दी है। आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। पैकेजिंग के बारे में, एक्सपोर्ट पैकेजिंग हो या फूड रिलेटेड हो या बाकी तरह की सारी आज चर्चा हो रही है। और अगले महीने के लिए कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस, कैसे कॉस्ट कम करनी है, कैसे लीन मैनेजमेंट करनी है, कैसे क्वालिटी सर्टिफिकेशन पे जाना है, चावला जी के साथ मिलकर हम अगले महीने का प्रोग्राम भी करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए मैं मंच पे विराजमान हमारे सभी आदरणीय सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। अभी हम टी ब्रेक के लिए एक बार ब्रेक करेंगे, यही अवेलेबिलिटी है, और उसके बाद हम भी आपके साथ बैठ के टेक्निकल सेशन का आनंद लेंगे और IIT की टीम से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। भारतवर्ष की बात जब हम करते हैं तो ये बिजनेस लगभग $75 बिलियन US डॉलर बिजनेस हो गया। पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, विश्व के हिसाब से जो अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग इंडस्ट्री है, जो इंटरनेशनल पैकेजिंग इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो 3% आका गया है, और भारतीय पैकेजिंग इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो 15% के लगभग है। ये शो करता है कि हमारी जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और दूसरे इंडस्ट्री के कंपेयर में ये इंडस्ट्री अपने आप में चौथे स्थान पे अपना मकान रखती है।
जब हम देख रहे हैं कि डिफरेंट सेगमेंट है पैकेजिंग का, जो बिगेस्ट सेगमेंट है प्लास्टिक का है, प्लास्टिक बेस्ड पैकेजिंग का है। हम देख सकते हैं इस स्लाइड के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जो पैकेजिंग है, ट्रेडिशनल पैकेजिंग से आज मॉडर्न पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, मॉडर्न पैकेजिंग के बाद हम इनोवेटिव पैकेजिंग की बात कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर ड्रिवन पैकेजिंग की बात करने लगे हैं, जहां हमें कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है, तभी जाकर के हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एक जगह दे सकते हैं, अपनी मार्केट में अपने ब्रांड को सस्टेन कर सकते हैं। तो इसके लिए कंज्यूमर के क्या रिक्वायरमेंट हो सकते हैं? जो आज का कंज्यूमर क्या चाहता है कि वो पैकेजिंग सेफ हो, सिक्योर हो, दूसरा सस्टेनेबल है। थ्री एक्सपेक्टेशन है आज के युग में, आज के दौर में जो कंज्यूमर ड्रिवन पैकेजिंग है वो 3S कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। तो जब आप इस 3 कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट है, पैकेज प्रोडक्ट है या पैकेजिंग मटेरियल है, आप सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर हैं, तो देन यू कैन सस्टेन इन द मार्केट। तो ये 3S कॉन्सेप्ट आज के युग में बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे मैन्युफैक्चरर हो, एक्सपोर्टर हैं, तो मेरा मानना है, हम सब का मानना है कि जो पैकेजिंग आज के मॉडर्न युग में जो कंज्यूमर ड्राइव है वो इस 3S के इर्द गिर्द घूम रहा है। सिक्योर मीन्स के कितना पैकेजिंग को हम कहते हैं कि काउंटरफीट पैकेजिंग हमारे ब्रांड को एक तरह से रिकॉग्नाइज करता है, कंज्यूमर में एक कॉन्फिडेंस देता है। तो इसलिए हमारा जो एंटी काउंटरफीट मैकेनिज्म है पैकेजिंग के थ्रू, चाहे वो होलोग्राम के थ्रू हो या कैप एंड क्लोजर सील्ड मटेरियल है, प्रॉपर लेबलिंग है, तो जो इंटीग्रेशन of packaging is very much important to give security to the consumer। तो सिक्योरिटी फीचर आज बहुत डेवलप हो गया है। आज हम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, इसलिए हम जो बात करते हैं कि इंटेलिजेंट पैकेजिंग, जहाँ पैकेजिंग आपसे बात करता है, कंज्यूमर से बात करे, है ना, कंज्यूमर को ये बताए, ये ज्ञान दे, ये नॉलेज दे कि पैकेजिंग के अंदर जो पैकेज्ड आइटम है, जो कमोडिटी है, वो कितना सेफ है। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन उसके अंदर क्या कोई टेम्परेचर एब्यूज़ हुआ है तो वो भी लॉक सिस्टम के थ्रू कंज्यूमर को इसका इंफॉर्मेशन मिले। थर्ड इम्पॉर्टेंट इज दैट कि कंज्यूमर, आज के ऑगमेंटेड पैकेजिंग की बात करते हैं, तो जो कंज्यूमर है वो बात करे पैकेजिंग के माध्यम से, तो कि प्रोडक्ट कितना सेफ है, उसकी शेल्फ लाइफ टाइम के हिसाब से कितना है, वो पैकेजिंग के माध्यम से लोगों को, कंज्यूमर को ज्ञान हो। तो इसलिए हम इंटेलिजेंट पैकेजिंग की बात करते हैं, टैगिंग सिस्टम की बात करते हैं, लेबलिंग की, कलर कॉम्बिनेशन, ये कई कुछ टूल्स हैं, टेक्निक हैं जिसके माध्यम से पैकेजिंग को इंटेलिजेंट और इंटरेक्टिव पैकेजिंग बनाया जा रहा है। तो जिससे खास के हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, एक्सपोर्टेबल आइटम है एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जहां हम प्रोडक्ट को ट्रैकिंग एंड ट्रेसेबिलिटी आसानी से कर सकते हैं। RFID टैगिंग के माध्यम से हम प्रोडक्ट को मार्केट में, ये दिस इज द कंज्यूमर्स डिमांड। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट डिमांड फॉर कंज्यूमर का जो रिक्वायरमेंट है कि हमारा पैकेजिंग, अभी हम लोगों ने एक स्टडी करके फाइंड आउट किया कि हाउ द कंज्यूमर्स, आज के दौर में कंज्यूमर क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या हैं। 70% रेस्पोंडेंट मेंशन कि वी रिक्वायर्ड सस्टेनेबल पैकेजिंग। उनकी डिमांड अब बढ़ रही है। अभी हम लोगों ने 10 साल का पुराना डाटा देखा कि जो बायोडिग्रेडेबल कॉन्सेप्ट है, बायोकम्पोस्टेबल कॉन्सेप्ट है, नैनो पैकेजिंग मटेरियल का जो कॉन्सेप्ट है, जो जहां उसमें 0.1 मिलियन टन का कंजम्पशन था, वो अब हो करके 3.8 मिलियन कंजम्पशन लास्ट 8 साल में बढ़ गया। नाउ देयर इज ह्यूज डिमांड ऑफ इनकमिंग मटेरियल्स फॉर द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स, मास्टर बैचेस, जो जिसको कि मास्टर बैच के वजह से एंजाइम बेस्ड पैकेजिंग के वजह से जो प्लास्टिक, खास के प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल है, उसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए।
एक तो वो है कि मटेरियल इनोवेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू मेक द प्लास्टिक एज अ सस्टेनेबल एंड बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो इनपुट्स है, प्रोसेस है कि क्या we can utilize some natural fiber to make alternative to the plastic material. And third is the how we can extract some natural ingredients to make a natural ink material for printing purpose, for organic packaging, for organic produce. तो ये जो ट्रेंड है, हमें तो just you want to understand कि हमें मार्केट कंज्यूमर का क्या रिक्वायरमेंट है, दैट आई हैव डिस्कस्ड। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट इज दैट कि अब जो कंज्यूमर का ट्रेंड है 3S कॉन्सेप्ट के पास बड़ा वी कैन समराइज के 3S कॉन्सेप्ट के साथ एंड सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम जो भी पैकेजिंग मटेरियल हो कॉस्ट इफेक्टिव हो एंड और सस्टेनेबल हो, बायोडिग्रेडेबल हो। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द सस्टेनेबिलिटी कि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। सस्टेनेबिलिटी तब तक नहीं होगा तो जो बेसिक थंब रूल है इंडस्ट्री के हिसाब से, खास के पैकेजिंग की इंडस्ट्री में लाइक अदर इंडस्ट्री के हम जो हेवी मटेरियल कंपोनेंट्स थे, इफ़ अर्लियर वी यूज्ड टू हैव अ मोर गेज पैकेजिंग फिल्म्स, शीट्स, वट एवर इज देयर, कभी 120 माइक्रोन का यूज़ करते थे, अब इंडस्ट्री वो चाहती है कि उसको 80 तक ले आए। जहाँ हम 120 से 80 तक लेके आए तो कितना 50 माइक्रोन का फ़र्क पड़ गया। जब 50 माइक्रोन का फ़र्क पड़ा तो कॉस्ट भी कम हो गया, द मटेरियल कंजम्पशन बिकम्स लोअर। जब मटेरियल कंजम्पशन लोअर होगा तो लो कार्बन फुटप्रिंट हुआ। ये बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि सेम फिल्म, सेम प्लास्टिक मटेरियल और पेपर, उसमें क्या फंक्शनलिटी इम्प्रूव किया जाए। तो नई नई इनोवेटिव टेक्निक्स जैसे नेचुरल फाइबर materials make this natural fiber materials nano material, nano fibers and now nano embedded ink, intelligent ink की बात हम करने लगे। तो so that these are the functional tool by which we have to make this packaging material sustainable। ये काम अब लोग these are the tools or technique by which we have to have a innovative packaging materials and packages to fulfill the sustainability requirement as a world level। Then of course ये पुरानी बातें अब हो गई हैं जो हम कहते हैं कि why the packaging industry is growing in such a जो 15% का जो ग्रोथ रेट है एंड इसके पीछे के क्या फैक्टर है, ड्राइवर्स हैं। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं, डेफिनेटली वी एग्री विद दी कि ग्रोइंग डिमांड ऑफ लॉन्ग लास्टिंग पैकेजिंग मटेरियल और जो डिमांड है सस्टेनेबल प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ने लगा मार्केट में, और एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर। पिछले 1 दशक से हम देख रहे हैं कि जो रिटेल मार्केट की बात करते हैं, कंज्यूमर मार्केट की बात करते हैं, कंज्यूमर पैकेजिंग का जो ग्रोथ रेट है 23% से 27% हो गया है। 23 to 27% का ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज वी हैव ऑब्जर्व दैट। अब जब हम और एंड नाउ लास्ट 5 years से हम जो बूम देख रहे हैं जो पर्टिकुलर सेगमेंट में ड्यूरिंग द पैंडेमिक है वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का कोई बिजनेस पैकेजिंग के बिना नहीं हो सकता है। और फिर जैसे हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है, इनिशियली वी हैव वर्क 3 and 4 जो बड़े जाइंट्स हैं कंट्री के, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, उनके साथ बड़ा काम किया। इनिशियली आपने भी देखा होगा, आपके पे एक्सपीरियंस रहे होंगे कि जो इनिशियल जो पैकेजिंग था वो बड़ा हेवी था, 5-5 लेयर का पैकेजिंग मटेरियल होता था। वी डायरेक्टली हाउ, ये आपको शायद नहीं पता था होगा या कम लोगों को पता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये था कि हाउ द पैकेजिंग इंस्टीट्यूट इज डूइंग हेल्पिंग द इंडस्ट्री, कैसे हेल्प कर रहे हैं। इनडायरेक्टली दे यूज टू अप्रोच अस। हमारे स्टूडेंट हमने बताया कि जो हमारा बेस्ट स्ट्रेंथ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का, वी हैव ए स्ट्रॉन्ग 5000 से ज़्यादा अलुमनाई वर्क करते हैं। किसी इंडस्ट्री का नाम ले लो, चाहे वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, छोटी हो, इंडियन कंपनी हो, इंडियन मल्टीनेशनल हो, यू विल फाइंड हर जगह आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के अलुमनाई पाएंगे। तो दिस अलुमनाई यूज टू ट्राई टू कम बैक। आदमी को प्रॉब्लम होती है, किसी भी बच्चे को आप लोगों ने कहा है कि बिल्कुल लेमैन की भाषा में बात करना है, तो मैं हिंदी पे आ गया हूँ और करना भी है। तो मैं कल भी 1.5 घंटे से ज़्यादा सिर्फ हिंदी में ही बात किया हिमाचल में जा कर के। तो मुझे लगा था कि यहाँ मुझे
दूसरी गैदरिंग से बात करनी थी, इसलिए आई स्टार्टेड टू टॉक इन इंग्लिश। तो इंग्लिश ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश से बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए कि प्रैक्टिस में ज़्यादा काम करते हैं तो इसलिए इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, या इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ कि हमारे जो नोट्स हैं, प्रेजेंटेशन है, वो इंग्लिश में रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें इंग्लिश ही में बात कर सकते हैं, हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल, फील बेटर हम कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकते हैं हिंदी में। तो मेरा ये कहना था कि कैसे हम लोगों ने हेल्प किया है जिस पूरे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थे। पहले हमारे पास आईफोन आता था बड़े बड़ी पैकेजिंग में, उसको हम लोगों ने ऑप्टिमाइज़ किया। ये बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है कि बड़ा बॉक्स को हम लोग छोटे बॉक्स में, नाउ यू हैव आईफोन इन स्मॉल पैकेज। उसका क्या काम किया, उसके डिज़ाइन को चेंज किया। इफ़ यू हैव टू हैव अ डिज़ाइन, ऑप्टिमाइज द कॉस्ट, लो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, इट इज़ द सस्टेनेबिलिटी। जब सस्टेनेबिलिटी में लो कॉस्ट मटेरियल यूज़ करेंगे तो कॉस्ट ऐसे कम हो जाएगा, कार्बन फुटप्रिंट ऐसे कम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल विल बी द लेसर। तो ये है। तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले उसकी डिज़ाइन को चेंज करवाया, उसके बाद फिर उसकी ट्रांसपोर्ट वर्दीनेस टेस्ट करवाया, और उसके बाद जो हमने पहले सेकंड वर्ड यूज़ किया था, क्या कहा था, सिक्योर्ड होना चाहिए। आपकी पैकेजिंग सेफ तो होना ही चाहिए। अगर पैकेज आपका प्रोडक्ट जिसको आप पैक करके मार्केट करना चाहते हो वो अगर सेफ नहीं है तो पैकेजिंग का पर्पस नहीं है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल रोल ऑफ द पैकेजिंग इज 3P कॉन्सेप्ट। 3S now the consumer driven रिक्वायरमेंट है 3S कॉन्सेप्ट, लेकिन बेसिक पैकेजिंग का क्या कॉन्सेप्ट है 3P। देन वी टॉक 5P, देन 7P। ये जो मैनेजमेंट के टूल्स हैं। तो 3P कॉन्सेप्ट में पैकेजिंग के बाद प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, है ना, ये तो होना ही चाहिए, तब आप सेफ पैकेजिंग की बात करें। सिक्योरिटी मीन्स गुड अरेंजमेंट, एंटी काउंटरफिट अरेंजमेंट with the help of holographic and good sealant, जो भी कैप एंड क्लोजर इंटीग्रिटी इंटैक्ट होना चाहिए, ये फीचर होना चाहिए। एंड थर्ड वन जो सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हमने एक बात किया कि जो आज का युग है आपके लिए जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट दिखता है जिसमें ग्रोथ है, ई रिटेल के बाद नया चीज़ क्या आया, रिटेल चेन के बाद ई मार्केटिंग का। ई मार्केटिंग में क्या शुरू में हुआ और हम कैसे काम कर रहे हैं। जो हेवियर पैकेजिंग मटेरियल थे, बड़े बड़े बॉक्स थे, उसको हम लोगों ने ऑप्टिमाइज करके ट्रांसपोर्ट वर्दीनेस प्रैक्टिकलिटी लेबोरेटरी में उसको एग्जामिन करके के फिर उसको दोबारा से रीलॉन्च किया। तो यू हैव अ नाउ स्मॉलर पैकेजिंग एंड पैकेजेस। तो इनडायरेक्टली कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा देश में सस्टेनेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लो कार्बन फुटप्रिंट के लिए। तो दिस वे वी वर्कड एंड दिस इज द वे टू वर्क फॉर ऑल ऑफ यू। मैं तो बेहतर कहूँगा कि प्रोडक्ट को लॉन्च से पहले मेरे पास भेज दीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के पास भेज दीजिए, जहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट की बेसिक डिज़ाइन, फंक्शनलिटी, एस्थेटिक डिज़ाइन, ऑप्टिमाइजेशन and overall transport worthiness test, because when we transport our product from one place to another place, from one geographic region to another geographical region and maybe multimodal transport system में fit हो, ताकि आपका प्रोडक्ट सेफ, सिक्योर एंड सस्टेनेबल कंडीशन में कंज्यूमर तक पहुँचे। नेक्स्ट, हाँ, ये बेसिक चीज़ें हैं, नाम नॉट गोइंग टू डिस्कस, मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। पैकेजिंग है क्या, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सब आपको कई मौके पे हम लोगों ने बता चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन हैव अ पैकेज डिज़ाइन, वहाँ से शुरू कीजिए, प्रोडक्ट के सारे हिस्ट्री को कलेक्ट कर लीजिए, उसको डाटा बनाइए, फिर उसके बाद अब तो नाउ वी वांट टू आल्सो वर्क सम ऑफ द एंटरप्रेन्योर के साथ, कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ, कि कैसे हम कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करें जिससे आपके प्रोडक्ट का ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, ऑप्टिमाइज पैकेजिंग हो आसानी से हो सके, सॉफ्टवेयर, हाँ, लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर। तो वो एक एरिया है जिस पे काम करना है हम सबको, इंडस्ट्री के साथ मिलके, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ अल्टीमेटली। तो ये है कि दिस आर द बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। थर्ड, आज के हमने देखा कि जब हम पैंडेमिक सिचुएशन से जूझ रहे थे तो उस वक्त एक चीज़ आ गई थी, पैकेजिंग पे लोगों का भरोसा ज़्यादा हो गया, सही, अनपैक प्रोडक्ट से ज़्यादा पैक प्रोडक्ट पे आने लगे।
फॉर द शॉर्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया। शुरू में लोग इंडस्ट्री के पास आते थे कि किस एरिया की पैकेजिंग का डिमांड पैंडेमिक में बढ़ा है। 3 महीने के बाद हम लोगों ने पाया कि देयर इज स्विच ओवर, मतलब कि कंज्यूमर पैकेजिंग से बल्क पैकेजिंग के लोग आ गए थे। क्यों? कि बल्क पैकेजिंग एक ही बार उसको खरीद के लाना था, तो फिर वो एक टेम्परेरी फेज था। नाउ वी हैव डन पोस्ट पैंडेमिक के बाद फिर हम लोगों ने स्टडी किया, पाया कि नाउ द गोइंग बैक, लोग फिर वापस अपना कंज्यूमर पैकेजिंग पे आ गए। ये जानना जरूरी है, इसलिए आप सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको ये पता होना कि आखिर ट्रेंड क्या है, कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट का रिक्वायरमेंट क्या है, इनोवेशन क्या है, या किन इनोवेशन पे हम काम करना है। नेक्स्ट, तो जो एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ में आई, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट थी, वो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट थी, इंडस्ट्री की थी, वो था कि नो टच पैकेजिंग, कंप्लीट ऑटोमेशन बन गई, रोबोटिक पैकेजिंग की लोगों का डिमांड बढ़ने लगा। लोग ये कहते थे कि हम घर से बैठ करके हम मशीन चलाएं और फिर कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ प्लांट रन कर पाए। तो ऑटोमेशन पे लोगों ने बड़ा ग्रोथ हुआ है पिछले सिग्निफिकेंटली 2 to 3% डिमांड हैज़ कम फ्रॉम दिस साइड ऑफ ऑटोमेशंस। ये कुछ फंक्शनलिटी है, हम नहीं बताएंगे, बेसिक फंक्शन सबको पता है आप शायद, हाँ, कि पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, प्राइमरी रोल ऑफ पैकेजिंग क्या होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो पैकेजिंग होना चाहिए कि कन्वीनियंट हो। कंज्यूमर का एक बड़ा रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी पैकेजिंग बड़ा कन्वीनियंट हो। और आज करके जो हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी के 3R कॉन्सेप्ट में कि रीयूजेबल पैकेजिंग हो, इसलिए हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया, अभी जो हमने जो गिफ्ट दिया अपने चीफ गेस्ट को, वो ऐसी पैकेजिंग है, रीयूजेबल पैकेजिंग। सो द बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप रीयूजेबल पैकेजिंग करेंगे, तो इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती है, ब्रांडिंग है, एडवर्टाइजमेंट होती है कि लॉन्ग टाइम पे बार बार टीवी पे ऐड क्यों देता है, आता है, या आप क्यों देते हो, हाँ, ताकि बार बार आपके दिमाग में हिट करे। अगर रीयूजेबल पैकेजिंग होगा तो वो आपका इनडायरेक्टली आपकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग हो जाएगी। तो वो फोकस है वो हम लोगों का कि जब जो भी पैकेजिंग डिज़ाइन करें रीयूजेबल हो, कंज्यूमर एक प्रोडक्ट के बाद उसको रिटेन करे, चाहे वो किसी फॉर्म में, वेदर यूजेबल फॉर्म और डेकोरेटिव फॉर्म। दिस इज द न्यू ट्रेंड्स एंड डेफिनेटली इट इज़ द सस्टेनेबल ट्रेंड्स। नेक्स्ट, इस पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि लेकिन जो बड़ा आंकड़ा आ रहा है वो 40% का शेयर दिख रहा है एशियन सब कॉन्टिनेंट में ग्रोथ है पैकेजिंग का सेगमेंट का। तो ये सब एशिया पैसिफिक रीजन इज अगेन द लुक्रेटिव हब पूरी दुनिया के लिए है, जहाँ पे और जिसमें ग्रोथ रेट मापा गया है लगभग 4 से 5%। नेक्स्ट, ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ये चारों सेगमेंट डिफरेंट लेवल ऑफ द पैकेजिंग मिल करके ओवरऑल इन टोटलिटी पैकेजिंग कहलाता है। तो हर लेवल का पैकेजिंग उतना इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लेवल की जो पैकेजिंग है जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, सेकेंडरी लेवल की पैकेजिंग है जो रिटेल के बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड यूनिट पैकेजिंग जो हम रिटेल पैकेजिंग को यूनिट करके, फिर थर्ड वन इज शिपर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, एंड देन फाइनली यूनिटाइजेशन, पैलेट पे उसको कैसे करें। ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारे जुड़े हुए हैं। आप पैकेजिंग की एक विधि, एक लेवल से सेटिस्फाई नहीं कर सकते कस्टमर को। आपको सारे विधि विधान लेवल को जानना ज़रूरी है कि जब आपको एक मामले एग्जांपल ले लिए, एक कॉलगेट को पैक करना है तो आपको प्राइमरी पैकेजिंग ट्यूब के बारे में जानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि ट्यूब कैसा होना चाहिए, उसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, फंक्शनलिटी कितना होना चाहिए, सेल्फ लाइफ के रिक्वायरमेंट से बैरियर प्रॉपर्टी कितना होना चाहिए, ताकि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसको प्रोटेक्ट करे, और फिर उसको ऐसे डिज़ाइन करे कि कंज्यूमर को अपील करे। ग्राफिक्स इंपॉर्टेंट है। देन उसको हम सेकेंडरी पैकेजिंग में पैक करें तो वो शेल्फ में दिखता है, तो कैसे दिखे, कैसे रखा जाए कि मैक्सिमम आपका प्रोडक्ट ब्रांड डिफरेंशिएट करे, दूसरे प्रोडक्ट से अच्छा हो। तो ये सब अब तो कुछ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल हैं, टेक्निक आ गए हैं कि जिसके थ्रू के बाय विच कलर कॉम्बिनेशन आपका प्रोडक्ट सबसे अच्छा अलग दिखेगा। और आप कलर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। आप प्रिंटर्स हैं, बहुत सारे लोग जो कलर प्रिंटिंग को जानते हैं, विधि प्रिंटिंग कितना डेवलप हो गया। आप हम डिजिटल प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, है ना, 3D प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, तो उनमें से कलर का बड़ा इंपॉर्टेंट है। कलर साइंस अब फुल फ्लेज एक साइंस है ना, कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की पैकेजिंग कलर इंपॉर्टेंट है। तो आप तो क्वालिटी में ये चेक करते हो जो प्रिंटर्स होते हो, लेकिन उसका एक पहलू है जहाँ क्वालिटी में आप चेक करते हो। दूसरा पहलू है कि मार्केट परसेप्शन एंड कंज्यूमर परसेप्शन क्या है कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ये पैकेजिंग हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली एंसिलरी मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कैप और क्लोजर और सील नहीं हो आपका पैकेजिंग तो पॉसिबल है नहीं है। पैकेजिंग इज नॉट इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट स्लाइड करो, फास्ट करो। ये सब डिफरेंट डाटा है, वो आप लोगों को शायद ड्राई लगेगा, आप लोग लेट हो रहे हैं, तो मैं बड़े अच्छे से अलग अलग डाटा दिए हैं दिखला रहा हूँ कि डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल का क्या सेगमेंट है। नेक्स्ट एंसिलरी मटेरियल की बात कर रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो भी बड़ा मार्केट है, लेबल का मार्केट, कैप एंड क्लोजर का मार्केट, डिस्पेंसर का मार्केट, पैकेजिंग का पार्ट, प्रिंटिंग तो है ही। नेक्स्ट दूसरी बात, पैलेट इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पैकेजिंग सिस्टम्स। वुडन पैलेट, प्लास्टिक पैलेट, नाउ वी आर टॉकिंग के पेपर बेस्ड पैलेट्स भी मार्केट और ठीक है। तो डिफरेंट, उसके बाद डिज़ाइन, ये जो स्पेस यूटिलाइजेशन है उसको कितना स्टैकिंग हो, किस शेप का हो कि मिनी लोड मैक्सिमम लोड बियरिंग कर पाए ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इन कंटेनर वेदर बाय द सी और एयर। नेक्स्ट तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग हैंड पैकेजेस हैं। इंडस्ट्रियल पैकेजेस अलग हैं, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, कंज्यूमर पैकेजेस के अलग रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, हाँ, अब आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट पैकेजिंग में आपका क्या रोल है, आईपी का क्या रोल है। कितने एक्सपोर्टर हैं आप लोग? कैन यू रेज योर हैंड? आप एक्सपोर्टर हो, क्या एक्सपोर्ट करती हैं मैडम आप? एनिमल फीड सप्लीमेंट। एनिमल फीड सप्लीमेंट, ठीक है। एनिमल फीड सप्लीमेंट में रेगुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मैंने अपार्ट फ्रॉम द सेफ्टी नॉर्म्स ऑफ द पैकेज, आपको पैकेजिंग का ये देखना पड़ेगा कि वो पैकेजिंग ग्रेड क्या है। अगर वो फूड, डेफिनेटली फीड इज़ द पार्ट ऑफ द फूड इंडस्ट्री, है ना। अभी नहीं आया, लेकिन आना है, उसको आना भी चाहिए, इसलिए, है ना, वो आएगा आने वाले दिन में, इसलिए वी यूज़ टू डिस्कस। तो सेफ कितना पैकेजिंग है कि वो कंटेमिनेट तो नहीं करता है पैकेजिंग को, उसकी लीचेबल लीचिंग, नाउ वी आर टॉकिंग, जिस तरह हम लोगों ने फूड में ऑलरेडी बैन कर दिया है कि न्यूज़पेपर नहीं कर सकते। इंक का माइग्रेशन कितना हो रहा है नाउ। अर्लियर वी यूज्ड टू टॉक अबाउट द ओवरऑल टोटल माइग्रेशन की बात कर रहे थे, देन वी हैव टू इशू द सर्टिफिकेट, फूड सेफ्टी, फूड पैकेजिंग सेफ्टी का सर्टिफिकेट देते थे। लेकिन अब और भी उससे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आ रहे हैं कि इंडिविजुअल माइग्रेशन, पर्टिकुलर पॉलीमरिक मटेरियल का, इंक का कितना माइग्रेशन हो सकता है, होता है, उसको एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर, बिकॉज दिस सम ऑफ द इंक कंपोनेंट्स, है ना, इसलिए हम सॉल्वेंट से सॉल्वेंट लेस पे आ गए। नो, लॉट ऑफ इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी में पैकेजिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री ने काम किया है, कर रहा है, एंड नाउ वी आर ऑल्सो कम्पीटिंग विद द इंटरनेशनल मार्केट में भी, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, परखना बहुत ज़रूरी है। उसके कुछ स्टैंडर्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ और स्टैंडर्ड फ्रेम हो रहे हैं, सो डैट हाँ हमारे प्रोडक्ट कभी रिजेक्ट नहीं हो इंटरनेशनली। नेक्स्ट, ये सब हम लोगों ने टोटल आईपी ने ना, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एपिडा है, एपिडा के लिए 38 पैकेजिंग स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट का बना है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे वो डिफरेंट 38 प्रोडक्ट्स की कमोडिटी है। अब कुछ जीआई टैग प्रोडक्ट आ गए हैं, तो जीआई टैग का 81 पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो आने वाले दिन में वो एपिडा की वेबसाइट पे जाएगा, मेरी रिपोर्ट वहाँ सबमिट होगी और वो अपलोड होगा, तो फार्मर्स एंड कंज्यूमर विल गेट द बेनिफिट्स। पहले एपिडा के लिए एक्सपोर्ट जब करता था कोई पैकेजिंग के लिए उसको सब्सिडी मिलती थी, am I right?
मैं फिर कई फोरम में मिनिस्ट्री में बात कर रहा हूँ कि दैट शुड बी रिवाइव, कि बिकॉज वी वांट टू हैव अ जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट की बात कर रहे हैं, कि क्वालिटी मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, क्वालिटी स्ट्रिंजेंट की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जो एक्सपोर्टर, जो एंटरप्रेन्योर, जो मैन्युफैक्चरर गुड क्वालिटी पैकेजिंग यूज़ कर रहा है, उसको कुछ जो स्पेशली जो फीस पेड कर रहा है आईपी, वो रिटर्न हो जाए सब्सिडी के रूप में। am I राइट? तो वो स्टैंडर्ड, तो इसलिए आप पहले वो रूल था कि जब भी कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता था, उसको एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स मिलते थे, तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी था पीटा के लिए, कि वो पैकेजिंग सर्टिफिकेट लगाए कि वेदर दे हैव एक्सपोर्टेड देयर प्रोडक्ट इन गुड स्टैंडर्डाइज्ड पैकेजिंग डेवलप्ड बाय आईपी एंड डिक्लेयर्ड एक्सेप्टेड बाय द पीटा। चलो, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, ये हम लोगों ने किया है। और ना इट इज़ द टाइम, हम लोग ने टी बोर्ड के लिए भी किया, कॉफ़ी बोर्ड के लिए किया, एंड स्पाइसेस के लिए कर रहे हैं, और 81 प्रोडक्ट के लगभग हम लोग जीआई प्रोडक्ट की पैकेजिंग डेवलप। नेक्स्ट, ये कुछ देखिए डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए है, स्पेसिफिकेशन है। हो सकता अब आप कहेंगे कि क्यों आपकी बात माना जाए, पीडा की बात क्यों माना जाए? कई बार पार्टिकुलर एक्सपोर्टिंग कंट्री होती है ना, जो एक्सपोर्ट करती है, उनके अपने स्पेसिफिकेशन होते हैं, तो उसके लिए फिर मैं क्या मदद कर सकता हूँ? उन्होंने जो स्पेसिफिकेशन दिया उसकी प्रोटोटाइप आप बनवा लीजिए और उसकी सर्टिफिकेशन हमसे करा लीजिए, तो you'll have a confident। पहली बात कॉन्फिडेंट होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू हैव अ सर्टिफिकेट कि हमने पैकेजिंग में, फूड की पैकेजिंग में बड़ा अच्छा काम किया है, बड़े अच्छे अपडेट्स हैं, बड़े अच्छे अडॉप्शन बाय द कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री है। लेकिन फिर भी वी आर फेसिंग द स्ट्रॉन्ग स्टीफ कंपटीशन टू द ओवरसीज मार्केट। उनकी पैकेजिंग देख करके जब आप चाइना ट्रैवल करोगे, यूरोपियन कंट्रीज ट्रैवल करते हैं, तो लगता है यार क्या पैकेजिंग है वहाँ पे। तो वहाँ अभी भी हम लोग अगर किसी भी इंडस्ट्री को कॉस्ट कम करना होता है तो सबसे पहले कहाँ कम करता है? वो बोलता पैकेजिंग का कॉस्ट कम कर दो, 5 गत्ते का नहीं 3 गत्ते का ले लो। उनको ये नहीं पता है कि उसका प्रोडक्ट 3 गत्ते में नहीं जा सकता। उनको ये पता नहीं कि जो प्रोडक्ट है, हाँ, जो एब्रेजन्स हो सकते हैं, जो हैज़र्ड्स इन ट्रांसपोर्ट है, उसकी वजह से उसमें क्या क्या डिफेक्ट आ सकता है। उसको ये नहीं पता कि एक डब्बे जो स्टैकिंग करके के होना है, स्टैक होना है, कंटेनर में जाना है, नीचे वाला डब्बा डैमेज हो सकता है। उनको ये नहीं पता कि जब समुंदर से 3 महीना 45 दिन समुंदर में वो प्रोडक्ट ट्रैवल करता है, तो उसको जो एग्रेसिव इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, सैलाइन कंडीशंस हैं, वहाँ के हाई ह्यूमिड कंडीशंस हैं, वहाँ पे वो गत्ता 3 प्लाई का सर्वाइव नहीं करेगा। कि वो दिखने में एक पैकेजिंग दिखता है, लेकिन कई पैकेजिंग मटेरियल मिल करके बनाता है। उसमें पेपर भी यूज़ होता है, स्टील भी यूज़ होता है, उसमें एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज़ हो सकता है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड बैरियर प्रॉपर्टीज ऑफ योर कम्युनिटी। जो आपको मॉइस्चर से रोकेगा, लाइट से रोकेगा, ऑक्सीजन से रोकेगा, तो आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बनी रहेगी। समझ रहे? एक क्वेश्चन होता था कि तो जैसे आपने बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको अप्रोच कर सकती है तो आप उसकी पैकेजिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो सर उसकी चार्जेबल, नथिंग इज फ्री। 1 रुपया अगर फ्री में दोगे तो आपकी अहमियत खत्म हो जाएगी। और मैं ये इंस्टीट्यूट यूनिक इंस्टीट्यूट है जो सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे चल रही है। हम सरकार से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे लेते हैं, सैलरी वी अर्न वी स्पेंड, और इसीलिए ये इंस्टीट्यूट में हम साल के 1 महीने का बोनस तनख्वाह देते हैं, इसलिए हम खुद अर्न करते हैं, हम खुद सैलरी डिसाइड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। और कुछ को किसने मेरी दामन पकड़ा था रास्ते में कि हिंदी बोलिएगा, क्या मैंने जस्टिफाई किया? हाँ, बाइक से ज़्यादा दम है आपकी आवाज़ में। क्या बोले? बाइक से ज़्यादा आवाज़ है। हाँ, वो तो है, लेकिन आपने कहा था हिंदी बोलना, तो मैंने कहा था कि वो पता हो। सबने आपकी बात को सुना, फिर आप नहीं, जो चीज़ कह रहे थे सबकी समझ में आ जाए आपके बात। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या ऑडियंस क्या चाहती है। इसके लिए हाँ, बोले सर। हाँ, सर फूड पैकेजिंग में जैसे स्पाइसेस पैक करते हैं तो अलग अलग तरह की पैकेजिंग होती है। खादी और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है एमएससी सेक्टर के अंदर में एक कैपिटल कॉस्ट बहुत पड़ती है पैकेजिंग की। एक जो छोटा मतलब व्यापारी या मैन्युफैक्चरर वो बियर नहीं कर सकता। इसका गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जिसमें कैपिटल कॉस्ट को रिम्बर्समेंट किया जाती है, गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी है। एमएससी सेक्टर की तरफ से जो कैपिटल कॉस्ट डिजाइनिंग कॉस्ट आती है, जो शुरू की प्लेट्स बनती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो क्या कोई गवर्नमेंट की स्कीम है जिस आप एक CFC लगा सकते हैं, कॉमन पैकेजिंग सेंटर।
नहीं सर वो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था जैसे मसाले ये कैपिटल कॉस्ट जीरो हो जाएगी ना, कैपिटल कॉस्ट तो गवर्नमेंट दे देगी। आप CFC से लगा लो सब लोग मिल करके, 8-10 लोग मिल जाओ, 20 लोग मिल जाओ और एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर लगा लो जहाँ पैकेजिंग हो सके। नहीं सर वो वहाँ पर आप पैकेजिंग का एक्सपर्ट भी हायर कर सकते हो। आपने जो बता रहे हो सर वो हमको सबसे इकट्ठा करना पड़ेगा। हम एक यूनिट लगाते हैं सर इसका एक और जवाब मैं देना चाहूँगा। मेरा सर छोटा क्वेश्चन है, वो छोटा जवाब हमारे पास आता है, वो छोटा है। मैं उसका आंसर पकड़ना है पकड़ना एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या इंटरनेशनल की जरूरत है? पैकेजिंग के बिना तो नहीं कर सकते। तो अगर डेंजरस गुड है, हम कितनी फीस लेते हैं पता है? डेंजरस गुड के एक सर्टिफिकेट के लिए 25 से 40 हज़ार रुपये तक जाता है एक फीस। हमने उन पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को ये रिकमेंड कर रखा है, आप हरियाणा के गवर्नमेंट को भी बात कीजिए कि गवर्नमेंट इस क्वालिटी के नाम पे पैसा देती थी पहले, ISO के नाम पे आप ISO ले रहे हो, HACCP ले रहे हो। तो वही बात मैं कहता हूँ कि पैकेजिंग इज इम्पोर्टेंट टूल टू मॉनिटर एंड मिनिमाइज द क्वालिटी को रेगुलेशन में मदद करती है। तो अच्छी क्वालिटी के लिए जो फीस एक्सपोर्ट के लिए वो मैंडेटरी सर्टिफिकेट है उसको रीइंबर्स कर दो। मैंने MSME को भी लिखा है, रिकमेंड किया है कि इसको इम्प्लीमेंट कीजिए तो आपका पैसा वापस ऐसे आ जाएगा। दूसरी ये कौन सी स्टेट पहले ये कर रही है उसका एक अगर जियो आने दीजिए, जो जियो आने दीजिए मैं बात करूँगा। अगर वो आ जाती है हाँ तो आपके भी मेरे लिए हरियाणा में करवा लेंगे, हरियाणा में दिक्कत नहीं है, फटाफट कर देते हैं। हाँ लेकिन यहाँ से भी शुरू कर दीजिए। कोई स्टेट ने 3 साल से रोक रखा है, हालांकि उस पर साइन हो चुका फाइल पे, लेकिन हमें नहीं देनी, पता नहीं रीजन जो भी है। दूसरी चीज है कि स्पाइसेस बोर्ड, अगर आप एक्सपोर्टर है स्पाइसेस बोर्ड विल गेट द बेनिफिट। अगर उसकी फाइनल स्टैंडर्ड हम बनाने जा रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से स्लो हुआ है काम, वो पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन यूज करेंगे तो स्पाइसेस बोर्ड के आप मेंबर हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। तीसरी चीज़ हम सरकार से ये भी कह रहे हैं MSME से कि क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे पैकेजिंग को जोड़ दो। जो बंदा अच्छी डिज़ाइन करना चाहते हैं, शायद MSME में शायद है ना सर कि सस्टेनेबिलिटी के लिए पैकेजिंग के लिए कितना 2 लाख रुपए तक मिल सकता है। सस्टेनेबिलिटी बहुत सारी स्कीम्स हैं एक्चुअली में, पैकेजिंग उसमें कवर हो सकती है। ट्रेडमार्क से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स है, स्कीम्स के ऊपर हम लोग अलग से कुछ हाँ लेकिन सस्टेनेबिलिटी भी है तो वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है MSME के थ्रू। अगर कोई एंटरप्रेन्योर, कोई भी इंडस्ट्री सस्टेनेबल डिज़ाइन करती है, उसको डिज़ाइन का पैसा MSME में मिल सकता है, लेकिन वो प्रॉपर चैनल से अभी हो नहीं पाया, इम्प्लीमेंट नहीं पाया। 3 साल से स्कीम चल रही है, अनाउंस्ड है मिनिस्ट्री की तरफ से, समझ रहे थे? ये सब पढ़िए और जो प्रॉब्लम है मिनिस्ट्री को भेजिए, तो जहाँ हर्डल्स होंगे वो उसको फिर हम लोगों से मीटिंग करके वो पूरा किया जा सकता है, उसको ईजी किया जा सकता है। थैंक यू राहुल। So just start with the handloom and handicraft product. India is one of the important state of export of handicraft to the worldwide. I mean जो कि राजस्थान एक जो स्टेट है वहाँ से सबसे ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट की और हैंडलूम के प्रोडक्ट काफ़ी सारे जो एक्सपोर्ट्स होता है हैंडीक्राफ्ट, हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल, पेंटिंग, स्कल्पचर, वुडन वेयर, सिल्वर, स्टोन वेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ द मटेरियल जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट होता है बाहर की कंट्री में। जैसे हरियाणा इज ऑल्सो इज वेल्थिएस्ट स्टेट, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट, इट्स कॉल्ड एज द होम ऑफ द गॉड एंड वेरियस कल्चरल हेरिटेज फेस्टिवल, फोक्स एंड वाइब्रेंट लैंडस्केप. The state is famous for its tourism, health, culture, history and monuments. As you know, there are different type of the handicraft or handloom product which are exported, like the pottery atom, which is one of the important thing, which are here they develop this one. Again the Fulkari work, again this is very famous cloth work or a handmade handloom product, which is again we export from here. Then Daris is one of the again is this product, wooden furniture, then leather work. So these are the some of the food product also. Then these are the product which are basically made here in the Haryana state, and these are the export. The basic function of the packaging is to protect, preserve the content during transit from manufacturing to the consumer. This is the basic definition. Generally, packaging, as you all know that कि 2 तरह का पैकेजिंग है, ट्रांजिट पैकेजिंग और एक कंज्यूमर पैकेजिंग. ट्रांजिट पैकेजिंग जनरली टू हैव प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट वेयर द कॉस्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, जहाँ पे हम लोग कॉस्टिंग का बड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं. एंड द कंज्यूमर पैक वेयर द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट कि किस तरह से आप लोग प्राइम कंडीशन में कंटामिनेशन फ्री. तो दीज आर द 2 ब्रॉडली क्लासिफिकेशन ऑफ द पैकेजिंग टाइप.
सो आप देखोगे कि पैकेजिंग का लाइफ साइकिल है, जहाँ पे स्टार्ट होता है प्रोडक्शन, कंसेप्चुअलाइजेशन, स्ट्रेटजी, इनोवेशन, डिजाइन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, परचेज, कंजम्पशन, एंड यूज, रिसाइकल एंड द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल। तो ये एक होल लाइफ साइकिल है जहाँ पे आप देखोगे कि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे इनोवेशन हो रहा है। एवरी 3 months देयर आर द प्रोडक्ट चेंज, प्रोडक्ट शुड बी सेम बट द पैकेजिंग आर चेंज। आप देखोगे पैकेजिंग का आउटर कवर जो कि बाहर का कवर है वो चेंज होता है। आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखोगे P&G, HUL, वो क्या कर रही है कि प्रोडक्ट शुड बी सेम इनसाइड बट आउटर पैकेजिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वो चेंज करती है अलग अलग वे से। अलग अलग रिसर्च, इतना का भी रिसर्च होता है, उसके ऊपर वो लोग दे हैव देयर ओन टीम एंड दे टेक द डेटा एंड एनालिसिस द डेटा एंड दे चेंज द पैकेजिंग अकॉर्डिंग टू द जो ट्रेंड है या फिर जो कल्चर है उस हिसाब से वो लोग चेक करती है। फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ इनोवेशन आप देखोगे, काफी सारे इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे बोर्नविटा में उन्होंने अपना पैकेजिंग बनाया है लेगो के फॉर्म में। सो उन्होंने जो टारगेट यूजर है वो बच्चों को लेके कि बच्चों को किस तरह से अट्रैक्ट करना है पैकेजिंग के हिसाब से, तो उन्होंने लेगो के फॉर्म में वो किया है। अगेन दिस इज eatable waters, I mean either color based water or some powder based water where actual water but there is a flavor. When you open the cap the powder should be goes and it will be the flavor water. जो भी 10 rupees का जो हम लोग 20 rupees का water bottle है, that they just take a innovation done something. When you open the cap the powder should be go and you will get a flavor water. So same thing, 20 rupees bottle convert into the 200 rupees or 150 rupees bottle like that. So where the impact of the packaging design or packaging is very important into this particular sector. Even the Nike का जो brand है Nike Air, so they just generally pack the product in a air bags, I mean plastic bag like that. They make the new way of packaging for their product. आप देखो काफी सारे ऐसे product है. Lot of things here also the meat, they have the technology like that कि when you the days are goes the strip are there so the color is changes. So according to that one कितना फ्रेशनेस है वो हमें पता चलेगा। So that is about the packaging where again the technology part is now come into picture. Here also Sunrich करके आप ये देखोगे ये packaging is a 5 liter edible jar. So this is again the aesthetically target to the female audience because they are the buyers for this one. So how the shapes and all, so that is again important. Here they are the define the shape किस तरह से होना चाहिए so that the consumer attract that particular type of the packaging. So how the packaging is important to sell the product. Generally क्या होता है ये प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल का लास्ट एलिमेंट होता है जहाँ पे इंडस्ट्री डोंट वांट टू स्पेंड द मनी ऑन दैट वन, बट यही जो है पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को सेल करता है, आपका सेल बढ़ाता है. सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एट साइलेंट सेल्समैन पैकेजिंग. काफी सारे आप देखोगे इनोवेशंस आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के, इवन सम ऑफ द ड्राई फ्रूट्स आप देखोगे कितना द वे ऑफ द ग्राफिक से उसको एक अलग तरीके से उसका आइडेंटिटी दिया जा सकता है. सो लॉट ऑफ प्रोडक्ट यू कैन सी हियर, यू कैन डिसाइड कि किस तरह से इनोवेशन हो रहा है. सो अगेन द हनी पैकेजिंग जो जिस तरह से यहाँ पे पैकिंग किया है, इवन IIT हैड डन द हनी पैकेजिंग इन अ डिफरेंट फॉर्मेट लाइक दिस. आप देखोगे ये हमने ट्राइफेड के लिए हमने पैकेजिंग डिजाइन किया है कि हेक्सागोन शेप में, ताकि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का जो शेप होता है वो हेक्सागोन, तो उसी से इंस्पायर लेके हमने इसका पैकेजिंग डिजाइन किया है. उसका कलर, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन क्या आएगा, QR कोड, ये सब इंफॉर्मेशन इस पे प्रोवाइड करके when you put this on the shelf, it is totally different your product and consumer grab that packaging. So that is where the innovation is important. Your structure design should be different so that people should aware that okay, this is different and this is particular of the bag. Even not only that one, but also we design the sachet form, जो कि 25 ग्राम, 15 ग्राम like that. We also design this particular type of the sachet, जो कि अलग-अलग यूजर्स के लिए हमने बनाया. जैसे कि उन्होंने हमें बोला था कि हमारे को इंडियन रेलवे को टारगेट करना है, तो जस्ट वी डिजाइन की इस तरह से. It may be some sort of this is a 15 gram का pack which can be then targeted to the Indian Railways and other hotel industries also. So likewise we just given the design or specification. Also we will give them the vendors who can manufacturing this packaging for them. So आप देखोगे अलग-अलग तरीके के innovations it can be happen. So just before that I just want to show you कि recently we just designed a pack of this is a clay doll. You can see the packaging for a clay doll.
ये एक गुरनी डॉल करके फेमस है नाडियाड डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे ये हैंडीक्राफ्ट के जो लोग हैं वो वहाँ पे बनाते हैं. सो दे कम टू अस, हमारे पास आए कि हमारे सर जो हम लोग यहाँ से ट्रांसफर करते नॉर्मली जैसे इन बाय द गत्ते के बॉक्सेस पे वो बेचते थे, बट उसमें काफ़ी सारे ब्रेकेजेस होते थे और एक आर्टिकल का दाम समथिंग 500 और 600 रुपीज़ लाइक दैट. सो वो बोला कि हमारे को कि सर हमारे को इसका पैकेजिंग चाहिए, इसका ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग भी चाहिए हमारे को, सो दैट वी कैन सेफली एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे इसकी डिमांड है. बिकॉज उनका जो फाइननेस और जो डिटेलिंग वो करते हैं अपने प्रोडक्ट को, इज अमेजिंग, काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी यूनिक है. सो हमने उनका प्राइमरी पैकेजिंग भी डिज़ाइन किया, उनका टर्चरी, सेकेंडरी एंड द ट्रांसपोर्ट पैक. सो ऑल द 3 पैकेजिंग वी डिज़ाइन फॉर देम सो दैट दे कैन इंक्रीज द एक्सपोर्ट. ऑल्सो विल गिव द आइडेंटिटी. पैकेजिंग से हम लोग उन्हें उनका आइडेंटिटी दिया है कि इसमें हमने वो प्रोसेस दिया है कि किस तरह से ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किस तरह से बनाते हैं और विच पार्ट ऑफ द इंडिया दिस इज मेक दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैंडमेड प्रोडक्ट. दिस वन इवन इन दैट वन कि ये लो कॉस्ट है, ताकि इसका कॉस्ट भी हमने नहीं बढ़ाया, सिंगल कलर प्रिंटिंग हमने दिया है और 3 प्लाई ई फ्लूट पे हमने इसको डिजाइन किया है. इवन वी विल ऑल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुरनी डॉल, which is that about the what is history about that one, bar coding, QR code, everything you can see in this particular packaging. Also we can keep in mind that कि ये box इस तरह से primary pack है, it will go into secondary pack, that is a 12, then transport pack of the 6. So likewise we can see the module also, so that it can easily transport, it will go on the pallet, from pallet into container and then it can be exported. So all the things should be keep in mind so that people easily manufacture in the industry, packaging industry particular product. किस तरह का मटेरियल, तो everything we will just make this particular type of the product. So ये एक नए तरीके का पैकेजिंग हमें इसको दिया है so that it can be a proper तरीके as a gift pack and all you can see different colors इसका इस particular type of the इसमें हमने डिफाइन किया है. तो ये एक one of the packaging for a textile product I mean. तो ये भी बेसिक है, बट ओनली थिंग इज दैट ओपनिंग इज डिफरेंट. सो थोड़ा नया तरीके का इसका लुक सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड ओके दिस इज न्यू टाइप ऑफ पैकेजिंग एंड कैन बी यू गो इनटू द गिफ्ट सॉर्ट ऑफ पैकिंग. नहीं हो रहा. Same thing, I think again this is again the mirror work of the Rajasthan. How that can be, you can make in such a way that visibility we can show in a window form, and also it will give the element जो वहाँ का है राजस्थान का, वो हमने इस पर हाईलाइट किया ताकि वो लगे कि ये हैंडलूम प्रोडक्ट है, हैंडमेड प्रोडक्ट है. तो विल गिव द विज़ा बिगर विंडो सो दैट अंडरस्टैंड इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इज फ्रॉम द राजस्थान. ऑल्सो द इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर दिया है हमने कि कैसे क्या हम लोग इसको सेल करेंगे और इजीली मैन्युफैक्चरेबल, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ द मटेरियल ऑल्सो. सो ऑल थिंग यू कैन सी कि इस तरह से हमें पैकेजिंग हमें यू हैव टू डिज़ाइन, यू कैन डेवलप सो दैट वी कैन एक्सपोर्ट मोर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री ऑल्सो. So these are the example we made this in the उस्ताद प्रोजेक्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के साथ हमने बनाया है. 40 प्रोडक्ट जो इंडिया ऑल इंडिया के हमने सिलेक्ट किए थे, उनमें से राजस्थान के जो मिरर वर्क है वो एक सिलेक्ट हुआ था. तो उसका ये एग्जांपल हमने स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनाया था ताकि वो लोगों को पता चले कि किस तरह से पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. You can listen, I mean, you can hear me, right? There is a rules and regulations globally for this plastic material, and plastic is always a controversial material so far. I mean, whether we should go ahead with or not, if we at all go ahead, to how long we should get along, where we should stop, where we should modify, whether existing one should be biodegradable, something eco-friendly. There are a lot of concepts that are globally hue and cry. So there are many in packaging world, like our universe has been governed by many kings and queens. You know that maybe Alexander, maybe Nelson, maybe Napoleon Bonaparte. So in that way, in a packaging world also governed by many kings and queens. Okay, packaging world, just like a paper, the old packaging partner. Then probably your aluminum foil is the giant, glass is the great barrier. So they are all kings, But plastic, if you just see the introduce plastics with only one slide, and then certainly you would appreciate and you will agree with me that I call her. I mean, she is a feminine gender.
So that's why so much controversial globally. So just to give a overall view on the different type of standards and this thing as far as the plastic world is concerned. But there is standards and norms. So basically the plastic is really a material that is a global concern. Whether a product is in contact with the plastics, and two things happens. One is the leachability as well as the migration. Migration, extractability and leachability. Extractability and leachability is a hue and cry, and more specifically for the US FDA, for the pharmaceutical products more specifically, because whenever you are going for the sterile products like an ophthalmic products or maybe an injectables, then you will have to give a full-fledged data on its extractability and leachability factor. It is a huge expenditure, not less than 30 to 50 lakhs for this extractability leachability test. Now as far as the food product is concerned, हो रहा है क्या इसमें? नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है ना, आवाज़ तो है, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है. Okay. Anyway, you have any specific question? Only 5 to 10 minutes. Yes? Only 5 to 10 minutes. You have any specific question on the standards and specification? Then, as far as the plastic is concerned, you can free to ask. But just a minute. I'll just 5 minutes. I'll speak on, and then I'll ask the question. Now, as far as this food safety norms and food safety factor is concerned, basically the two things in FSSAI or many other revenue, whether you are going for the ISO standards or of the BRC for your audit purpose of your food safety management, everything, they talks about the mainly two things. One is the migration test. One is the migration test. Am I audible to you all? One is the migration test and another one is the heavy metal content. These two things are to be governed efficiently and efficiently. I mean to say meticulously and efficiently you will have to govern, otherwise there will be a toxic effect will be there. So the global migration test and specific migration test is two factors. Generally we do test at IIP also for any sort of packaging material, more specifically in plastics. So the standards for the global migration test, there are the norms, there are the standards, there are the procedure prescribed in BIS as well as DIN standard, also European standards, also in American standard, FDA standard. So I am not going to, that is not the forum, but if you see the particular norms and particular process of doing this migration test, so you will have to follow that particular test and procedure. But the data which is to be very important for us to know, that the global migration test or the overall migration test can be designated, can be given or has been prescribed in the two terms. One is the how much quantity is just coming as an extractable and what is the quantity value, permissible limit, that is very important. So that is 10 milligram per even surface area, suppose it is a plastic films or it is a pouch or something like that. So surface area per decimeter square means 10 centimeter by 10 centimeter, 100 square centimeter में in contact with that particular material, simulant, not the exact material, the simulant. The simulant is prescribed or recommended or selected as per the property of the food concerned. So food chemistry, food formulation has to be known, and then only you can select a particular suitable solvent. It could be acetic acid, it could be distilled water, it could be heptane, it could be some acids, or it could be alcohol or something like that. So then you get the migration test and a specific condition like 2 hours for 70 degrees Celsius you put it and then you take out the extraction and then you see dry to evaporate to dryness and see how much quantity is the residue is there. So that quantity should be not more than 10 milligram per 10 centimeter by 10 centimeter square. That is one way. Second way of designating or the prescribing, the norm says there 60 milligram per
kg of the food supplement. That is also in both the way. But mostly in the flexible world, 60% covered. So we get the pouches, we get the films, we get this kind of thing. Then only then 10 milligram per decimeter square is the one. Then there are the other thing are the heavy metal concerned. So as far as the FSSAI is concerned and US FDA is concerned, for pharmaceutical it is a stringent because they are in parts per billion. But here in case of food and FSSAI norms, they are only in parts per million. So there is a wide difference in food and pharmaceutical, more specifically as far as the FDA norms are concerned. So sorry I could not show you the slides, but probably now I can show you the few slides also, but time is limited. So in that way I am telling in pharmaceutical world the stringent quality control is necessary, and whatever the test to be prescribed as per the US pharmacopoeia, like the monograph number 661 number monograph in USP, United States Pharmacopoeia. If you go through, there are certain tests to be performed for the plastic container, just like physiochemical test, then buffer capacity, then your extractable leachable factor, I mean to say residual ignition, then your DSC, the differential scanning calorimetry, so all kind of tests, and then water vapor permeation rate of a particularly container. So those things are prescribed things, and we do for whenever the product is getting exported or the NDA submission is there from generic people who are doing this business. So they will have to maintain all those kind of accelerated study, and all those tests should be confirmed to conform to the particular material which is prescribed for that particular product to be exported. Okay, so there is a huge work activities going on, but this is the thing. And then plastic material as per the European standards is concerned, that is the 10 by 2011, the EEC 10/2011, that is the thing. So that was prescribed by the European community in 2011, but subsequently a lot of amendments has come. So those amendments are also captured in my things. So accordingly we will have to each and every amendment has got certain thing incorporated for most stringent control of the system, because it is a pharma world. So that's why those things are captured, but because of the time limit I could not complete.